Assalamualaikum everyone. I hope you all are well and you have understood the previous lecture. Now students, we are going to start our exercise. First of all, I will tell you what are like fractions, what are unlike fractions, what are improper, what are proper fractions, and what are mixed numbers or whole numbers. Students, in last lecture I will tell you fractions with same denominators are called like fraction. Here are the some examples. 3 over 7, 4 over 7, 2 by 7, 5 by 7 and 6 by 7 are called like fractions because these all fractions have the same denominator, and the same denominator is 7. Denominator is the lower value of fraction. Students, here are some pictures. The full shape area in green box is 4, and the color shapes are called numerator and the full shape is called the denominator. This fraction shows 4 over 4. नेक्स्ट शेप देखें तो इसमें क्या है कि 3 बॉक्सेस कलर्ड हैं और 1 जो है वो ऐसे। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स इसमें जो रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं वो कितनी है 4। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 3 over 4। नेक्स्ट सर्कल 2 पार्ट्स आर कलर तो 2 by 4 एंड लास्ट वन इज़ काइट सो 1 over 4। अब आपके पास क्या है कि कलर शेप्स जो है आपके पास वो क्या शो करती हैं, वो शो करती हैं कि वो न्यूमरेटर है, एंड जो फुल शेप का होती है हमारे पास वो क्या होती है उसकी डिनोमिनेटर। सो दीज all these fractions have same denominator and the same denominator is 4, so these fractions are known as like fractions. Now students, fractions with different denominators are called unlike fractions. For example, here are some examples. 1 over 8, 3 over 4, 3 by 6 and 6 by 9 are unlike fractions. ऐसी fractions जिसका denominator same नहीं होता उन fractions को हम unlike fractions भी कहते हैं. Here are some shapes of unlike fractions. फर्स्ट में आप देखें कि हमारे पास स्टार है जो कि हाफ कलर्ड है तो 1 over 2. नेक्स्ट में हमारे पास 10 टोटल रेक्टेंगल्स हैं, उसमें से 4 कलर्स हैं तो 4 over 10. नेक्स्ट 1 by 3, 1 by 4 and 4 by 6. All shapes have different denominators, so we call these fractions known as unlike fractions. Now a proper fraction has a numerator that is less than the denominator. Proper fraction ऐसी fraction होती है जिसका numerator जो है वो less होता है किससे, denominator से. Here are the examples of proper fraction. 2 over 8, 2 is numerator and 8 is denominator. Numerator is less than denominator, and next value example is 3 over 5. So these examples are called proper fractions. Now student, an improper fraction has a numerator greater than denominator. इसका improper fraction में क्या है कि numerator जो है वो greater है किससे, denominator से. Here you can see that some examples of improper fraction: 5 over 4 and 3 over 2, and 5 is numerator and 3 in second fraction 3 is numerator, so both numerators are greater than denominators. So the student, next fraction is mixed fraction. A mixed fraction is a combination of a whole number and a proper fraction. Mixed fraction ऐसी fraction है जिसमें एक whole number है और एक proper fraction होती है. Here are example of mixed fractions. 3 whole 2 by 3. 3 is a whole number and 2 over 3 is proper fraction. Now students, we are going to start our exercise number 3A. Now students, open your books. Exercise 3A. Identify the like fraction from the given fractions. आप लोगों में से identify करनी है like fractions. Question number 2, identify unlike fractions from the given fractions. Question number 3, arrange the fractions given below in descending orders. And the third one, question number 4 is arrange the fractions given below in ascending orders. And question number 5, simplify the given fraction to its lowest form. So चलिए हम इसका solution solve करते. Now students, let's start the solution. Identify the like fractions from the given fraction. 3 over 2, 5 over 2, 6 over 2 and 2 over 2. Like fraction are those fractions which have same denominator. So the first question have the same denominator, so these fractions are called like fraction.
नेक्स्ट पार्ट 5 3/7, 2/7, 5/7 है, 6/11। अब देखें इसमें सब में क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो इट्स मीन डैट कि ये कौन सी फ्रैक्शंस है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। आपने सिर्फ इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है लाइक फ्रैक्शन को, सिर्फ आप लोगों ने लाइक फ्रैक्शंस लिखनी है, अनलाइक फ्रैक्शंस को आप मेंशन बेशक मेंशन कर दीजिएगा। और अनलाइक फ्रैक्शंस, सो दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक fractions. Question number 2, identify the unlike fractions from the given fractions. 5/12, 3/12 and 6/14. So अब देखें, अब आपने ये नहीं देखना कि दो डिनोमिनेटर सेम है तो इट्स मीन दैट ये लाइक फ्रैक्शंस है। नो नो नो, लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस which all the fractions have same denominator. In this fraction, all these three fractions do not have same denominator, so these fractions are called unlike fractions. Similarly, part 6, 8/13, 1/5, 6/19 and 3/17, all the fractions have different denominators, so these are also called unlike fractions. इस तरह से आपने बुक पे अपने जो क्वेश्चन आपके पास बुक में है, जो बुक पे आप लोगों के पास क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फ्रैक्शंस गिवन बिलो इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। आपने क्वेश्चन में क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। ऑल स्टूडेंट यू शुड नो व्हाट आर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर्स आर दोज ऑर्डर्स विच वी स्टार्ट फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास फ्रैक्शंस हैं, तो हम सब फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आपने सबसे पहले इसमें न्यूमिरेटर चेक करना है कि न्यूमिरेटर जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा। 8/19, 3/19, 15/19, 17/19 and 4/19. So this fraction have the greatest numerator. So first of all आप क्या लिखेंगे, 17/19, कॉमा, नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, 15/19, नेक्स्ट आप लिखेंगे 8/19, देन 4/19 एंड लास्ट वन इज 3/19. ये दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. सेकेंड वन इज 3/8, 1/2, 5/8 एंड 3/4. देखिए इस दो में दो के डिनोमिनेटर सेम है, दो के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो आप सबसे पहले सेम डिनोमिनेटर को देखें. इसका न्यूमिनेटर क्या है, ग्रेटर 5/8, सो 5/8, next 3/8, next 3/4 and last one is 1/2. These fractions are arranged in descending orders. Now student, question number 4 is arrange the fractions given below in ascending order. Ascending orders में क्या होता है, ascending orders mean from lowest to greatest. So here are the fractions 18/19, 5/19, 15/19 and 21/19. So ascending orders are smallest to greatest. So first of all you can check that what is smallest fraction in this question. So sub smallest क्या है, 5/19. So first fraction will be 5/19. Second one is 15/19. Third one is 18/19. And last one is 21/19. These fraction the fraction arranged in ascending orders. Fifth part is 6/13, 2/13, 11/13 and 9/13. Arranged in ascending orders. सबसे smallest क्या है, 2/13, 6/13, 9/13 and 11/13. So the fraction arranged in ascending orders as well. Now students, question number 5, simplify the given fraction to its lowest form. आपने क्या करना है कि आपके पास फ्रैक्शंस गिवन है, आपने इसको इसकी लोएस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म मतलब आपने इसको सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन में चेंज करना है. दिस इज़ क्वाइट ईजी क्वेश्चन, आप लोगों के लिए ये न्यू है लेकिन बहुत ईजी से है. तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं.
स्टूडेंट्स यू हैव अ फ्रैक्शन 18/54। आपने सबसे पहले इसको चेक करना है कि आप इसको कौन से सबसे स्मॉलर नंबर से आप इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। देखें 18 भी हमारे पास इवन नंबर है एंड 54 इज़ ऑल्सो एन इवन number because the ending number is 4 will be divided by 2 and 8 will also divided by 2. so first of all हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 18/54 divided by 2, this also divided by 2. अब आपने क्या करना है कि आप इसकी रफ वर्किंग कर लें, इधर साइड पे ही इसकी रफ वर्किंग कर लें। 18 2 zeros are 0 minus this and 8 below 2 9s are 18. so answer is here is 9. आप 54 को डिवाइड करें 2 से, 2 2s are 4, 5 minus 4 is 1, 4 below and 2 7s are 40. ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27. सो नेक्स्ट फ्रैक्शन विल बी 9/27. अब आपने चेक करना है कि क्या ये दोबारा 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखें 9 इज़ एन ऑड नंबर एंड 27 इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर। सो हमारे पास किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से, डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय, आप चेक करेंगे दिस इम्प्लाइज 3 3s are 9 एंड 3 9 के टेबल में है 3 9s are 27. सो नेक्स्ट फ्रैक्शन विल बी 3/9. अब आप अगेन चेक करें 3 और 9 किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो येस दे बोथ कैन बी डिवाइडेड बाय 3. 3 1s are 3 and 3 3s are 9. सो द लोएस्ट फ्रैक्शन इज़ 1/3. अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग इजी से सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है तो आप बेशक उसको 2 से डिवाइड करते जाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक उसका न्यूमरेटर जो है वो इवन है, डिनोमिनेटर ऑड है, तो आप उसको चेक करेंगे कि वो दोनों किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो देन आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 18/54 था, फर्स्ट पे 18/54 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे थे, तो हमारे पास आंसर क्या आया 9/27. लेकिन जब हमने 9/27 को देखा तो 9 भी इवन ऑड नंबर है एंड 27 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर. सो द बोथ नंबर्स विल बी डिवाइडेड बाय 3. 2 के टेबल में 9 भी नहीं है, 2 के टेबल में 27 में, तो फर्दर हम मूव करेंगे 3 पे, तो 3 3s are 9 एंड 3 9s are 27. नेक्स्ट फ्रैक्शन 3/9, दे बोथ आर ऑड नंबर, सो 1 3 से अगेन डिवाइड हो गई तो 1/3. अब देखें 1 है, 1 किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता और 3 भी अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, तो सो 1/3 विल इज़ द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 5/20. अब देखें 5 इज़ ऑड नंबर एंड 20 इज़ इवन नंबर. तो अब आपने देखना है कि दोनों 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होते, सेम नंबर से डिवाइड करना है. 3 से भी डिवाइड नहीं होते, 4 से भी नहीं और 5 से. अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं. दिस इम्प्लाइज 5/20. अब देखें ये सेम टेबल है, किस में है 5 1s are 5 एंड 5 4s are 20. सो क्वेश्चन इज सॉल्व. तो 1/4 इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि अब देखिए 1 इज़ एन ऑड नंबर एंड 4 इज़ एन इवन नंबर, सो ये दे डिडंट डिवाइड विद सेम नंबर. सो क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपने देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई करना है इसमें सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस को लिखना है कि कौन कौन सी लाइक फ्रैक्शंस हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में अनलाइक फ्रैक्शंस बतानी है आपने. थर्ड में आपने डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस लिखिएगा एंड देन उसके सोल्यूशन में आपने बताना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स कौन कौन से. फोर्थ है अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर्स में. असेंडिंग ऑर्डर्स में पहले पूरी फ्रैक्शन लिखिएगा, 1 लिखिएगा, फिर उसके आंसर लिखिएगा एंड देन सिंप्लीफाई करना आपने उसको लोएस्ट फॉर्म में. आई होप यू अंडरस्टैंड द फुल लेक्चर. Thank you so much.